पर उसका मतलब ये था कि नजर इनायत तब होगी जब नजरों में रहोगे। बोला कृपा तो चाहिए पर अवेलेबल भी तो रहना पड़ेगा भाई, है ना। कौन से घंटे कृपा आएगी ये नहीं पता, पर आप अगर अवेलेबल नहीं है तो किस पे पड़ेगी नजर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इवन होटल्स, मिड मार्केट, इनकी आज की डेट में सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या है? जो ओनर्स है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है, सीए बनने के लिए, रेस्टोरेंट में और होटल बनने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वैसे नहीं, which is very very stupid. Ideally, somebody like me, who was otherwise educated, but was not restaurant educated, I should not have been allowed to open a restaurant. आपकी ऑफरिंग का आपका एक प्रॉमिस है, और उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए इफ यू नीड टू बेंड बैकवर्ड्स, सो प्लीज बेंड बैकवर्ड्स, बिकॉज यू प्रॉमिस, दे मेड फॉर इट। अब इसके अंदर कोई बातचीत भी है इसके अलावा, और वो चिल्ला रहा है, उसको हक है, वो बिल्कुल चिल्ला सकता है, बिकॉज आपका प्रॉमिस ब्रेक, एंड यू कैन नॉट शॉट बैक, बिकॉज दिस इज योर प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, बिकॉज यू प्रॉमिस्ड टू टेक केयर ऑफ एनीबडी हू कम्स इन। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हम अपने शो पे बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रेस्टोरेंट, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इन टोटल। सो वी विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, the role of tech in hospitality and food industry. And to have a conversation on this, we have with us Mr. Ashish Tulsian sir, who is the CEO and co-founder of Posist Technology. Posist is a software company which is empowering restaurants at a global level, which is now helping the restaurants and the food industry to scale at a much faster pace. So stay tuned to this amazing episode and to know the insights of about how technology can make a difference and can modify the dynamics to grow. Thank you very much, sir. I'm very happy that your presence over my show is nothing less than a blessing, because you have been the first name on my guest list. Thank you, Rishabh. Thank you for giving me the honor to be, the first guest on the list. But there I was, hopefully. Of course. So, and जब आपको पता चला that the hospitable couch, so आपके दिमाग में feeling क्या है that what is going to be, and what do you feel about this conversation we are going to have? Good question. I think I'm a lover of people who have hospitality in their heart, right? Because किसी को सर्व करना डिफिकल्ट काम है, वो आपके अंदर से आता है। एंड गिवन मैं आपसे जब मिला, मैं आपके बैकग्राउंड को जानता हूँ, मैं आपसे मिला तो Radix में the way you greeted us, the way you took care of us, the way you took care of our team during COVID times, every time I met you I always felt कि you carry that in your heart. So while I did not know कि आप इस पॉडकास्ट पे क्या करने वाले हो और किस बारे में बात करने वाले हो, बट एक बात मेरे को बिल्कुल पता थी कि सही आदमी हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा है, बिकॉज अगर आप खुद सर्विस करना नहीं जानते हो तो आप कैसे सिखाएंगे? So hopefully that's the direction this podcast is taking, but I'm very happy about it. I'm very grateful for your words, because it means such a great validation for me. No, that's absolutely true, because I can tell you in fact on that note I can tell you I always feel कि medical profession में, which unfortunately starts with doctors and then translates very quickly to staff in hospitals and nursing homes, one thing that I feel is extremely missing, like it's almost not there, is warmth and hospitality. Because I also understand कि पूरा दिन बीमार लोगों को, परेशान लोगों को, क्योंकि हॉस्पिटल में अपनी इच्छा से ज़्यादा नहीं है, तो वो देखकर शायद पूरा माहौल इतना इरिटेटिंग हो जाता है, पर that staff not carrying empathy all across. There are great people as well, but most of the hospitals, people will never tell you that they have had great experience, and it is वो ऑलरेडी बीमार है, Exactly. राइट? वो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए गया भी नहीं है, वो ऑलरेडी दुखी है, बट वहां पे वार्मथ ना होना, वहां पे हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग ना होना,
वहाँ पे वो बेसिक ग्रीटिंग मिसिंग होना is not cool. And I think that's where I need to give a shout out to Ritesh Bhai as well, Dr. Ritesh Malik, Uncle Dr. Ravi Malik, and the institution that they have created. I think they themselves as a family breathe hospitality. They're like, they will treat you like kings, right? And when I met you there, on one side, I was not surprised because technically, you're coming from from a background where I was expecting it. But now as an individual, जो आपका ट्रीटमेंट था वो काफी क्लियरली विजिबल था that you are coming, you believe in hospitality, you believe in serving people nicely because it cannot be just a job. जॉब का क्या है, कोई आया है उसको बिठा दिया है, वो अपना इलाज कराएगा, चला जाएगा, आप अगर प्यार से बोलते हैं कि बात कर लेंगे हो जाएगा. But I think it's important, and hospitality is important in every aspect of life as well. Leave your job or any professional work. For example, I am a difficult customer, and when I say difficult, I mean I don't treat the staff bad, but I have my expectations. When I go to a restaurant, I have my expectations. When I go to a hotel, I have my expectations. मैं अपनी expectations सामने रखता हूँ. मैं अपने रेस्टोरेंट में जब एंटर करता हूँ, टेबल पे बैठता हूँ, पूछता हूँ कि हमारा सर्वर कौन है, सर्वर से बात करता हूँ, उनका नाम पूछता हूँ, और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि सपोज सर्वर ने बोला कि मेरा नाम आशीष है, तो मैं बोलूँगा कि आशीष भाई अगले 1-1.5 घंटा हम आपके अधीन है, तो प्लीज हमारा ख्याल रखिएगा. आई पुट माई एक्सपेक्टेशंस फॉरवर्ड. When I don't get that back, I never go back to those places again. Because खाना मैं 100 जगह पे खा सकता हूँ. Exactly. पर मैं यहाँ पे एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ. Yeah. And hospitality of the staff, of the people who are serving is equally important. I take care of my people at my home, my parties. People, anybody who comes to my office, I will be serving them. I'll be serving them, everything because I like it. I mean, that's how it should be. So I think hospitality यार मैं बहुत सारे एंगल में बहुत सारी बात कर सकता हूँ, but I think you catch the drift. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में because somebody is giving me those credits, those attributes. Now I have thought of my 2020 में आएगा 21. So on that note, thank you very much, sir. आपकी जो life है, if I rewind that to back in 2005, 2006, and if I compare right now, you are surrounded with restaurants, food and beverage world around yourself, but it was not the first thing that you started. So during your early days of college or schooling, what was the atmosphere around yourself? जो मतलब एक inclination होता है ना हर एक का कि मेरे को ये करना है वो करना है, वो entrepreneurial mindset कैसे आया? Because आपने starting से ही कुछ अपना करा है, established. हाँ यार, मेरे को पता नहीं है because I think as far as I can remember, because I always wanted to start my own business, and when I say that, I mean I have early memories of saying that I'll start my own business one day was when I was in 6th standard. Okay. What was the reason? I don't know. I really don't know. But if you ask me, growing up, I knew that my dad is a stock market trader who also goes to college. So he chose an evening college, Shahid Bhagat Singh Evening College in Delhi University. He chose evening college because he wanted to trade share market in the morning. So he chose his career, that way. And very hedonistic, पर उनको पढ़ाने का शौक था. पर वो पढ़ाने के शौक के साथ ट्यूशन्स नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको अपना टाइम अपने कंट्रोल में रखना था. तो आई ग्रू अप सबकॉन्शियसली, दिस इज ऑल हाइंडसाइट विजडम. जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ओके, प्रोबेबली वो हेडोनिज्म कहाँ से शेप हुआ. आई थिंक आई ओ ऑलमोस्ट everything to my parents that way, because I think somewhere I got shaped to own my own time. I'm extremely hedonistic. मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अपने टाइम का पूरा कंट्रोल चाहिए. I'm very unapologetic about it. I also figured very early on कि यार I don't want to put money to my time. In the sense that this is what my dad told me about tuitions. I asked him कि यार आपके डैड के आसपास बहुत सारे प्रोफेसर्स थे क्योंकि ऑथर थे, तो number of high value tuition, personal coaching assignments that used to come his way were many. And मैंने एक दिन ऐसे ही मैं बच्चा ही था, पर मैंने ऐसे पूछा कि किसी ने तो उनको
1,000 rupees per hour offer kiya back in mid-90s, and my dad refused it. And this guy with his father came to our house requesting कि साहब से पढ़ना है, and my dad said कि मैं free में पढ़ाऊंगा तेरे को, and politely refused the money. So मैंने मजाक में पूछा कि ले लेते क्या प्रॉब्लम. So then my dad basically said कि बेटा अपने 1 घंटे की जो है वो कभी कीमत मत लगाना, ज्यादा या कम से फर्क नहीं पड़ता. तकलीफ ये नहीं है कि कीमत ज्यादा लगेगी या कम, तकलीफ ये है कि घंटे लिमिटेड है. तो वैल्यू कितनी भी ज्यादा लग जाए, पर एज सून एज यू स्टार्ट सेलिंग योर टाइम यू स्क्रूड, बिकॉज घंटे तो लिमिटेड है, घंटे बढ़ नहीं सकते, कीमत बढ़ सकती है, बट यू विल बी अ स्लेव टू योर ओन टाइम. एंड दैट लैंडेड क्वाइट स्ट्रॉन्ग, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. So I'm quite wary about it. Like, you can't buy an hour from me. And I don't say this in an arrogant way, right? We all are working hard to earn money as well. But what I'm saying is that उससे शायद life में कुछ flip हो गया कि I started looking at anything that was giving me returns proportionate to the hours invested. I started staying away from that. And I think that is where probably, today I run a software product company and not a software services company. That also shifted from there, because software services mean jitne घंटे लगाओगे उतने घंटे का आउटपुट मिलेगा. Software product, can multiply. कल अगर, today we work with 20,000 restaurants. Eventually, tomorrow morning, if we start working with 200,000 restaurants, my income will grow 10x. Exactly. But my time will not get used 10x, right? Because 10x तो time है ही नहीं, available ही नहीं है. So I think मुझे ये नहीं पता कि वो 6th standard में मैं क्यों बिजनेस शुरू करना चाहता था. ये सब पीछे मुड़ के देख रहा हूँ. पर फिर मैं 2000 में, मैं 10th क्लास में था, तो मैं yahoo.com को बीट करना चाहता था इंडिया से. मैंने youthhungama.com रजिस्टर किया. That was the first domain that I bought. And then I think मैं IIT-JEE prep में लग गया, usual drill. कोई साथ में था और you did that alone, मतलब कोई दोस्त हो? मेरा एक childhood friend था, पर वो sidelines में था, as in he was not the one who was willing to, who had all these plans, but he was my sidekick. Okay. Think of it like that, right? He was the one who I used to, bounce ideas off. But no, I think जब मैं अपने peers को कभी बोलता भी था, for example college में, why I did my first startup is because of that. 10th में वो ambition था, फिर एकदम से 11th हो गया. अब 11th में सबने बोला कि नहीं डैड ने भी समझाया कि भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए नहीं चाहिए. एंड मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, बिकॉज मेरे फेवरेट चैनल्स वो कार्टून नेटवर्क और डिस्कवरी थे. तो मैं 2 ही चीज़ें देख रहा हूँ. एंड मेरे लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का जो आइडिया था वो बहुत ही रोमांटिक आइडिया था कि इट विल बी अ स्टफ दैट यू सी इन डिस्कवरी, लाइक बिग शिट. एंड मैं कॉलेज में जब एंटर हुआ तो 11th-12th तो उसमें निकल गई. जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, ये तो बस बड़ा स्कूल है. दिस इज नथिंग ग्रेट. एंड I did not get through IIT, for my choice of subject. I did get through IIT, but very very rank much behind. तो मैं फिर अपने जो मेरे बैचमेट्स IIT में गए उनके हॉस्टल्स में जाके रहने लगा. वीकेंड्स पे रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगे. And I realized, and I got a taste of almost every college in India, like for 6 months, right? Because मेरे को सबके हॉस्टल्स में जाके रहने का मौका मिला, सबके सीनियर से मिल लिया, सबका माहौल देख लिया. तो मेरा वो जो भ्रम था ना वो टूट गया कि वो IIT में कुछ अलग होता होगा, यहाँ में कुछ अलग होता होगा. कोई 6 महीने बाद when I started reevaluating life, and I'm like, you know what, सब सेम ही है. And when I started asking seniors in those colleges, in my college, everywhere, I went to Bharati Vidyapeeth, in IB University, under IB University in Delhi. So मैं जब सबसे बात करने लगा तो मैंने पूछा सबसे कि यार, if I go through IIT, if I get through IIT, or versus if I'm here, what's the pros and cons? And all I heard literally from everywhere, from them, from here, was John. वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, प्लेसमेंट थोड़ी सी कम होती है, वहाँ प्लेसमेंट और कम होती है. The end result of every college was that, right? So and I said, पर मुझे नहीं जॉब करनी. तो then people were like, फिर तो तू कहीं भी जाए. And I was like,
That's fair. You are free to go anywhere. Correct. So I said, okay, screw it. So first year I was thinking of dropping a year to, prep again for IIT because last time I got through. तो मेरे लिए रैंक इम्प्रूव करना था मुझे मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था कि क्रैक होगा नहीं होगा. But I actually dropped my preparation in between. I basically said, yeah, I'm not going to waste an year. And I started my first startup when I was in second year of college, which was a telecom value-added services company. But वो करने का कारण सिर्फ ये था कि I had a lot of creative energy. मुझे ऐसा लगता है ऋषभ दैट वो जो ग्लैमर है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, ये बिल्कुल बकवास है. सच ये है कि खुद का बिजनेस रन करना इतना पेनफुल एक्सपीरियंस है कि या तो आपको उस पेन में मजा आता फिर तो ठीक है. If that's the poison you love, it's fine. But अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो पैसे कमाने के लिए ज्यादा, not a bad idea, but path simple नहीं है. 99% आप अपने employed counterpart को सब देखोगे ना, तो you will actually see them making more money or more prosperous money than you. Business is about balancing so many aspects of life at the same time, making the ends meet, fighting with uncertainty. 100% लॉस आपका है. प्रॉफिट जब भी होगा तो उसमें बहुत लोगों का शेयर है. क्रेडिट मिलेगा तो सब में बटेगा, लानत मिलेगी तो पूरी आपको मिलेगी. और ये सब बुरी बात नहीं है. पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन सब चीजों के साइन अप कर रहे हो. तो अगर आप इन सब चीजों के लिए साइन अप कर रहे हो तो उसका कोई कारण पैसे से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाला कारण बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं करता. थोड़े दिनों के बाद आपको लगता है कि छोड़ यार मेरे को ये नहीं करना, तो मेरे को कम पैसे दे दे, कम से कम सांस लेने दे. And I can tell you that I see this every day. I work with entrepreneurs, all around me. I think for me it was that creative energy. मेरे को प्रॉब्लम्स देखते ही सॉल्यूशन निकालने की आदत है. मैं प्रॉब्लम देखता हूँ तो घुस जाऊँ, तुम्हारी प्रॉब्लम भी देखूंगा तो भी घुस जाऊँ. For me, it is very important that I bring a creative solution to that problem. It can be a technology solution, it can be a human solution, it can be a conversation solution, it can be something. But I will not let any problem simmer right in front of me and not do anything about it. तो वो जो बीमारी है उसका इलाज, उसका एक मैनिफेस्टेशन ये है. तो मैंने कभी ये क्वेश्चन मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि अगर with what you know today, आज आपको अपने बारे में, अपनी स्किल सेट के बारे में, अपनी नॉलेज, अपने टेम्परामेंट, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी पावर्स के बारे में जो पता है, अगर इसी स्किल सेट के साथ आपको कुछ और करना हो, जो आप कर रहे हो वो छोड़कर कुछ और करना हो, तो आप क्या करोगे? मेरे लिए वो आंसर था, मैं सब सोचने लगा कि with what I know about myself, if I was not running a software company, what will I be doing? Answer was that I'll be a movie director. अच्छा, वो कैसे आया दिमाग में कि that you सेम ना, क्रिएटिव एनर्जी है. मेरे को जो सॉफ्टवेयर बनाने का बिजनेस है वो क्या है, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसका एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सोल्यूशन का आइडिया निकालते हैं, उसको पेपर पे छापते हैं कि ऐसे लिखना चाहिए, ये बटन होने चाहिए, ये क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा. फिर उसको प्रोडक्शन पे डालते हैं, बनाते हैं, आइटरेट करते हैं, पॉलिश करते हैं, एक दिन रिलीज करते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ताली बजती है, पैसे मिलते हैं. लोग रिजेक्ट कर देते हैं, वापस बैक टू ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट बिल्डिंग इट अगेन. एंड ये सॉफ्टवेयर रिलीजेस चलते रहते हैं, एंड दैट कीप्स अस वेरी वेरी हैप्पी. आई सी मूवी डायरेक्टर्स एज द सेम पीपल. Every founder of any company, what are they doing? They're thinking about the product, then they're thinking about how will this be marketed, they're thinking about how will this be serviced, they're thinking about bringing the right kind of team put together. यार मैं तो कोड भी नहीं लिखता, मैं सेल्स भी नहीं करता, मैं सपोर्ट कॉल भी नहीं लेता, मैं मार्केटिंग भी नहीं करता, मैं करता क्यों? इसी तरीके से मूवी डायरेक्टर क्या करता है, ना वो एक्टिंग करता है, ना वो डायलॉग लिखता है, ना वो स्क्रिप्ट लिखता है, ना वो डायरेक्ट करता है, राइट? The movie director's job is to bring the right kind of elements into that, in the right recipe, exactly. Right? And then put it together in such a way that the final product
is great. So I think ये सारा का सारा मेरे लिए वो क्रिएटिव एनर्जी का आउटबर्स्ट है. उसका एक मैनिफेस्टेशन ये है, मेरा उसका दूसरा मैनिफेस्टेशन वर्किंग विद अदर एंटरप्रेन्योर्स. अगर इसका कोई तीसरा मैनिफेस्टेशन होगा तो शायद मूवी या म्यूजिक क्रिएशन होगा, बट होगा कुछ क्रिएटिव. और आई थिंक हर किसी के अपने अपने इसी तरह के कोई हायर ऑनर पर्पस कारण है. Money and fame or any success that happens to you, one, it becomes a byproduct. Two, it comes with so much pain. आप इतना दुख दर्द में जी चुके होते हो कि जब तक वो आती है तब तक आप उसकी वैल्यू तो करते हो, पर सच मायने में आप उतनी वैल्यू नहीं करते. आपको लगता है कि ठीक है यार, मतलब इतना अब ठीक है, अब तो आना ही था, मतलब अभी क्या करें, इतनी मेहनत करी है ना. It's like अगर आप tend to lose that charm of that. An actor who is getting recognized on the street and getting mocked will still value it. ऐसा नहीं है. शाहरुख खान अगर रोड पे निकले और कोई पहचाने ना, वो बहुत बड़ा दिन होगा उसकी जिंदगी का, वो नहीं चाहिए उसको. But at the same time, you don't do it for it. जो एक पेडिस्ट्रियन व्यू है ना कि अगर मैं फेमस हो गया तो लोग ऑटोग्राफ मांगा करेंगे, तो आप बेसिकली ऑटोग्राफ के लिए नहीं करते हो. ये सब ऑटोग्राफ लोग ले रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट है, आप उसको चेरिश करते हो, पर आपने इतनी मेहनत करी होती है वहां तक पहुंचने में कि a less humble part of you is also saying कि ये तो हो रहा ही था ना, मतलब इतनी मेहनत करवा के, इतना घिसाई करवा के, राइट, ये भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या पॉइंट. तो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट बाय नो वन दिस शुड कम आउट. देखो, बात करने से ना ये चीज पता लगती है, बिकॉज एवरीवन इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड इज सेलिब्रेटेड. नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम द लास्ट अबाउट से ज्यादा नहीं 5 साल, बिकॉज एक शो भी आता है शार्क टैंक, उसमें भी यार जो फाउंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग देम आल्सो कमिंग ऑन एक्शन टीवी, या मूवी एक्टर्स आर ऑलवेज सेलिब्रेटेड. टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी, शेफ्स आर नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड. लेकिन जब तक आप उनका जर्नी नहीं देखेंगे ना, द वे दे हैव बीन थ्रू दैट पाथ ऑफ 25 years 30 years, वो आएगा. एंड द पर्पस वाज नॉट टू बी अ सेलिब्रिटी शेफ और सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर. इट हैज कम a long way. So coming to the restaurant industry with your creative mindset, जब आपका जो restaurant में, how did you find a problem in the restaurant? Restaurant world में यार problem find करना, actually I was not trying to find that, it just happened. It was a now we can call it a happy accident. In those days it was just an accident. हम लोग मैं टेलीकॉम कंपनी रन कर रहा था, Sakshi was running a web development company, and one day we just was chatting with someone, thought of investing in a restaurant. Very very random, कोई well thought out plan नहीं, कोई well thought out idea नहीं. ऐसे बस जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, किसी ने रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करी, कोई रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज लेने की बात करी, हमने बोला हाँ बिल्कुल करना चाहिए. And one thing led to the other, and within that conversation, we were asked, okay, will you invest? Sure, why not? And इस कॉन्वर्सेशन के 30 to 40 days के अंदर हमारा रेस्टोरेंट खुल गया. So the speed was absolutely mind-numbing. मतलब वो एक्चुअली जब बोलते हैं ना कि यूनिवर्स conspires to make you do something, वो ऐसा था, लिटरली ऐसा था कि मैंने मजाक में उस कॉन्वर्सेशन में जो बोला, अगले 3 दिन में वो सब हो गया. जैसे मैंने बोला कि यार एक QSR फास्ट कैजुअल फैमिली रेस्टोरेंट होना चाहिए, इंडियन प्योर वेजिटेरियन, पर अगर हम प्योर वेजिटेरियन करेंगे तो हमें नॉर्थ दिल्ली में करना चाहिए, वहाँ प्योर वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो किसी ने पूछा एग्जाम्पल दो, मैंने बोला शालीमार बाग में कर लेते. ये एग्जाम्पल से चल रही है बातचीत. सर ओके, शालीमार बाग में कहाँ जगह दिखा दें आपको कोई? एंड शालीमार बाग में एक बहुत पॉपुलर बेकरी है, इट्स कॉल्ड एवर बेक. सो बहुत पॉपुलर, बहुत पुरानी बेकरी है, वेरी गुड क्वालिटी. सो मैंने ऐसे मजाक में बोला कि हाँ बिल्कुल एवर बेक के बगल में दिला दो. आई किड यू नॉट, 48 hours we got a call back saying कि एवर बेक के बाजू में एक जगह मिल रही है. लाइक व्हाट?
And I said, okay, I'm coming. And we went. I saw the place from outside. And I said, let's talk to the owners, let's sign. And we, in that evening, decide the lease agreement. अभी restaurant का नाम नहीं सोचा है, अभी कोई कुछ नहीं हुआ है. So it went really speedy. Honestly, it was stupid. ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी थी. बच गए, इसका ये मतलब नहीं है कि सही किया था. पर वो बस, we were what, 20, when this was happening, we were 24 years old, 25 years old, but making our own money with a lot of money in hand. So you become a little wild, क्योंकि आपको लगता है कि and पैसे के दो इस्तेमाल हो सकते हैं early 20s में. तो या तो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. तो हम कंस्ट्रक्टिव थे, तो हम पैसे को जला रहे थे इस तरीके से, जलाने के और भी तरीके थे. So I think we fell into the restaurant. पहला महीने में रेस्टोरेंट खुल गया. Worked out very nice. We hired a consultant. He did most of the things for us. We didn't know jack shit about restaurant industry. So restaurant recruitment भी हुई, पर हमने लोकेशन अच्छी चूज करी, टॉप रेंट पे किया, हाई स्ट्रीट थी. तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी चाहिए थी कि खाना अगर डिसेंट है ना तो चल जाएगा, क्योंकि फुटफॉल इतना है that you have to make really bad food to fail. Okay. And restaurant खुल गया. पहले 3 महीने were beautiful. This consultant was running the turnkey for us. He was managing the restaurant, all that. But क्योंकि हमारे लिए more enthusiasm based project था, we started digging in. तो एक दिन हमने फिर उसको बोला कि यार वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान. हमने बोला कि हम दिल्ली में 50 रेस्टोरेंट खोलेंगे. हमने अपने ऑफिस में दिल्ली का मैप लगाया, पिन्स लगाने शुरू करे. But as soon as we said that, suddenly we realized that, oh, we are talking about like substantial investment. And we became a little serious. I started, kind of going to restaurant every evening. तो मैं रोज रात को 11 बजे से 1 बजे रेस्टोरेंट पे होता था. Once restaurant was, operations were done, looking at the numbers. और फिर मुझे numbers में होल दिखने लगे. फिर मुझे देखने लगा कि ये तो चोरी है, ये तो कम पैसा है, ये तो ज़्यादा पैसे दे दिए. जब मैंने उसको क्वेश्चन करना शुरू किया, ऑफ कोर्स हमें सब रियलाइज हुआ कि स्टाफ और वो कंसल्टेंट सब मिलके चोरी कर रहे थे. एंड आई किक्ड आउट द कंसल्टेंट. अगले दिन सुबह स्टाफ और उनकी सारी तकलीफें, वेनेजेंस, एवरीथिंग फेल ऑन मी. तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, फाइटर है, अब तो ईगो भी तो हट रही है ना बहुत तेज. तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम फाइट करेंगे. अगला 1 महीना फाइट करी. फाइट क्या थी? MCD, पुलिस, हेल्थ, फायर डिपार्टमेंट, तंदूर वाला, बर्तन धोने वाला, हेड शेफ, सू शेफ, सबके अपने अपने टेंट्रम, सबके अपने अपने एंटिक्स. कोई इस बात से गुस्सा है कि हमने उसकी चोरी पकड़ ली है, कोई इस बात से गुस्सा है कि हमने उसको डांट दिया है. कोई कंसल्टेंट का आदमी है तो वो they are trying to screw us. Problems. Every kind, all kinds of problems, right? And we kind of within first month ended up sorting everything, finding, bleeding at various counts, but understood the lay of the land, right? तो 1-1.5 महीने में ऐसा हो गया था कि हमने सब कुछ सीख के सेट कर दिया था, पर हम थक भी गए. अच्छा. तो हमारा ऐसा हो गया था कि भाई ये करना नहीं है. This is not what we want to do. This is not how we look at next 30-40 years of our life. Absolutely not. We made a mistake. We also learned from it. This is it. What was that particular mistake? Like mistake क्या थी? मिस्टेक ये थी कि हमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में हवा नहीं थी. Okay. हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं किया था. ठीक है. हम फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में. हमें किचन के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है. हमें हमने कभी ट्रेडिशनल मार्केट में स्ट्रीट पे बिजनेस नहीं किया था. सी वी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज टुडे सिटिंग इन दिस ऑफिस, व्हाइट कॉलर पीपल टाइपिंग लाइफ अवे थ्रू अ लैपटॉप, वी आर वेरी वेरी इंसुलेटेड फ्रॉम व्हाट हैपेंस ऑन द स्ट्रीट. Exactly. एक एवरेज, हम दिल्ली में हैं आज, एक एवरेज इंडियन को एहसास नहीं है कि रोड पे बिजनेस करने का क्या मतलब है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज्ड पीपल. आई एम अ प्रिविलेज्ड गाय. मैं दिल्ली में हाई tiered income class, born and raised in Delhi, family 3 generations in Delhi. मैं हर डायरेक्शन से privileged हूँ. पर जब मैंने रेस्टोरेंट खोला एक legit market में with all the licenses, paying high rent, पर जब वो
हवलदार, बीट ऑफिसर, लोकल हवलदार, जिसकी नॉर्मल डे में एक सिटीजन केयर नहीं करता है, जब वो डंडा बजाते हुए आया और उसने गलत बात करी, उसने हमसे ब्राइब लेने की कोशिश करी, उसने हमें इंटरोगेट करने की कोशिश की, he tried to put his weight on us, and when we retaliated कि तुम कौन हो, how can you ask us this question, and the way he screwed us back, चलाने शुरू कर दिया, कुछ 1-1.5 महीना लड़के हमें रियलाइज हुआ कि यार ये ना हम इनके इलाके में, ये यहाँ का मीट ऑफिसर है और ये कमर्शियल मार्केट है, ये चॉइस तो मेरे पास है कि मुझे इसके इलाके में बिजनेस करना है या नहीं करना है, पर इससे पंगा लेके या इसकी बात ना समझ के ये बिजनेस हो नहीं सकता। तो मिस्टेक का मतलब सिर्फ ये था कि हम बिना एक्सपीरियंस के एक बिजनेस में वी डाइव्ड इन हेड फर्स्ट। अगर आप देखोगे ऋषभ, आज की डेट के अंदर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, एंड आई एम सेइंग दिस एज समबडी हु सर्व्स द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, यू नो, फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इवन होटल्स, मिड मार्केट, इनकी आज की डेट में सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या है? जो ओनर्स है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है, सीए बनने के लिए, रेस्टोरेंट में और होटलिया बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ ऐसे नहीं, which is very very stupid. Ideally, somebody like me, who was otherwise educated, but was not restaurant educated, I should not have been allowed to open a restaurant. आप आज देखेंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली बैकग्राउंड से फुली एजुकेटेड भी नहीं है और वो होटल ओनर्स है और रेस्टोरेंट ओनर्स, राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लोग गलत है, प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। उसको आइडिया ही नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है, 24/7 ऑन द टूल्स का क्या मतलब है, कि जब मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, जैसे मेरी लर्निंग क्या थी कि मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, मैं टेलीकॉम कंपनी चलाता हूँ, मैं यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। अब उस समय तो entrepreneurs were not being celebrated the way they are being celebrated right now, but अब मैं 100 रुपए की दाल मखनी बेचा। मुझे याद है कि पहली बार मैं रेस्टोरेंट में था ऐसे रात को 10-11 बजे, एंड एक फोन बजा, मैंने उठा लिया इंस्टिंक्टिवली, रेस्टोरेंट का फोन बजा, और एक लेडी ऑन द अदर साइड, कस्टमर, उन्होंने मेरे को ऐसे पूछा कि आप रसोई एक्सप्रेस से बोल रहे हैं? सर यस। सर आप लोग चोर हैं? अरे बोला मैम क्या हुआ? शाही पनीर में कितने पीस डलते हैं? तो आई वाज लाइक व्हाट, एंड शेम, मुझे पता भी नहीं था। सो आई सेड क्या हुआ? शी सेड पहले आप बताओ शाही पनीर में कितने पनीर के पीस डलते हैं? ऐसे मैं एक बार होल्ड करिए, मैं होल्ड करके शेफ के पास गया, मैंने बोला शाही पनीर में कितने पीस डलते हैं? उसने बोला 8। तो वापस गया, मैंने बोला मैम 8। She said exactly 7 है। अब in that moment, I went through multiple emotions. One, the highest, the top level emotion पता है क्या? कि कौन है ये जो पनीर के पीस गिल रही है? 100 रुपए का पनीर क्या मेरे जवाब है। But in that moment, I also went through this emotion कि oh shit, इसके 7 क्यों डले? एक पीस कहाँ गया? तीसरा इमोशन था कि ओ क्या हमारे यहाँ पनीर की चोरी हो रही है? चौथा इमोशन था कि क्या डिलीवरी वाले लड़के ने निकाल के खा तो नहीं लिया, जोमेटो वाली वीडियो आई थी। पांचवा इमोशन ये था कि ओ मैन, आई डोंट नो द माइंडसेट ऑफ अ रेगुलर कस्टमर, बिकॉज मेरी फैमिली में तो ऐसा माइंडसेट कभी था ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं है कि शाही पनीर के पीस गिन कैसे सकते हो, मतलब who will think about कि वो ऊपर तक ग्रेवी भरी हुई और आप उसमें से पहले पीसेस गिनेंगे। But it was a good learning to be humble, because in that moment मैं टेलीकॉम कंपनी चलाता हूँ, चाहे मैं जो मर्जी करता हूँ। In that moment, the truth of the matter was that there is a customer who has paid X money to buy a product that I promised, and I need to deliver that
and I'm going to get questioned no matter what is the magnitude of the money they are spending. चाहे उन्होंने 10 रुपए खर्चे हो, चाहे उन्होंने 1000 रुपए खर्चे हो, उन्होंने सवाल पूछा है, हमें डिलीवर करना है, हमें जवाब देना है, हम्बली देना है. आई कैन नॉट से कि हम गरीबों को सर्व नहीं करते. You understand what I'm saying, right? That's exactly where education of hospitality comes. Correct. So I think mistake ये है that जब आपको नहीं पता, जब आपको फीलिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि रेस्टोरेंट के मैकेनिक्स क्या है, होटल कैसे चलाना है. और मैं हमारी फैमिली का होटल था बैक इन चांदनी चौक. अगेन इट वाज अ साइड बिजनेस. एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर होटल कर दिया, किसी को चलाना नहीं आता था. तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा हाथ साफ किए थे इन माय अर्ली डेज. आई डिड नॉट रन द होटल, बट आई रैन द सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर दैट होटल. I created a customer review process, for that. तो उस समय भी सेम पॉइंट था that I learned कि यार कस्टमर बड़ा और छोटा नहीं है. आपकी ऑफरिंग का आपका एक प्रॉमिस है, और उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए if you need to bend backwards, so please bend backwards because you promised it. They paid for it. अब इसके अंदर कोई बातचीत नहीं है इसके अलावा. और वो चिल्ला रहा है, उसको हक है, वो बिल्कुल चिल्ला सकता है बिकॉज आपका प्रॉमिस ब्रेक हुआ है. And you cannot shout back because this is your property, because this is your business, because you promised to take care of anybody who comes in. Now these tenets are very hard to learn academically, but imagine आपने academically नहीं पढ़ाई, अब तो आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो सकता. So इसका मतलब तो ये होगा ना कि खाली पैसा होना is not the solution to enter any business. We are talking about restaurant, but any business. 100%. आज मेरे पास XYZ amount है, चलो इसमें कूद जाते हैं. मेरे पास अगर कोई भी आता है आज की डेट में जो बोलता है मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि भाई साहब जाइए किसी और के रेस्टोरेंट में जॉब करिए. आप अपने 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चने वाले 6 महीने खर्चिए पहले, और 6 महीने खर्च के बिना सैलरी के जॉब करिए. आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बढ़िया नुकसान क्या कर सकता हो. शानदार है. किसी के रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ काम नहीं करिए सीखने के लिए, अपने बारे में सीखने के लिए, उसका सीखने के लिए नहीं. इसीलिए जाकर उसके रेस्टोरेंट में काम नहीं करना कि मैं ज्यादा देखता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं. कोई सीक्रेट सॉस नहीं है यार. सब रेस्टोरेंट चलाना उतना ही डिफिकल्ट है, सीक्रेट सॉस बताने के बाद भी डिफिकल्ट है. अपने बारे में जानने के लिए कि क्या मैं इस काम के लिए बनाऊं, Exactly. क्या मुझे इससे खुशी मिलती है, क्या मैं ये कर सकता हूँ. Is this something that I want? How I want to lead my next 20, 30, 40 years of professional life? You will learn a lot about yourself in that process. You will actually realize कि वो जो रेस्टोरेंट ओनर होने का या होटल ओनर होने का ग्लैमर है, उसके पीछे कितनी हीट है. I did not want to be a restaurant owner after 6 months. After 6 months I was like, boss, ये नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी, right? And I was good at it. As I said, my empathy for my customers is very high, but I was not interested in doing that. And my respect for restaurant owners honestly went up 100x. मतलब I feel for restaurant owners today. Those 6 months train. I ran that restaurant for 2 years actually. Okay. Yeah, but I'm saying like after 6 months, I was like, okay, if somebody had told me earlier at the start कि ये होने वाला है, You were never 150% not. So but it turned out to be very fruitful. as I said, only winners are able to write the stories. So हम उसमें से बच के भी निकल गए, सही लर्निंग लेके निकले. तो हमने फिर अपना जो प्रोडक्ट है, the tech company that we run today, first version of this product was built for our own restaurant. And as I said, it was not an idea. It was basically we trying to solve our own problem. तो हमारे लिए it was very easy then. And this is the other piece of advice that I generally give to entrepreneurs, that in technology, most of the tech entrepreneurs are coders, are from tech background, let's say. And they try to believe that they can look at a problem and devise a technology solution for that, which isn't true. If you have never been that business yourself, you cannot. For example, अगर आज मैंने for example कभी garment manufacturing नहीं चलाई है, right? अगर आप मैं decently smart आदमी हूँ,
अगर आप मुझे किसी गारमेंट फैक्ट्री में ले जाएंगे, मैं इधर उधर देखूंगा, हाँ यहाँ कपड़ा आता है, यहाँ कटता है, यहाँ नपता है, यहाँ सिलता है, यहाँ ये करता है, हाँ बनाने में सॉफ्टवेयर आपके लिए, बट एक्चुअली गलत है। उसके दो कारण। पहला, टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी में एफिशिएंसी क्रिएट करनी चाहिए। मैं सिर्फ उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर रहा हूं, पर उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में मैं उनकी अच्छे प्रोसेस को भी कंप्यूटराइज कर रहा हूं, गलत को भी कंप्यूटराइज कर रहा हूं। और अच्छा और गलत मैं ढूंढ नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है। हाँ, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। तो मुझे क्या होता है कि वो 2 स्टेप जो कर रहा है वो चीजें हो सकते हैं, राइट? ये उनकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं? करेक्ट। हो सकता है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जी दादाजी ऐसा करते थे, हाँ, क्योंकि हमारे तो खानदान में ऐसे होता है, बट असलियत में ऐसा नहीं है। तो मसल मेमोरी चल रही है। तो जब आप किसी एज एन आउटसाइडर आप किसी बिजनेस के लिए कुछ बनाते हैं, I don't work with entrepreneurs who have never been a part of the problem themselves for which they are solving today. It's very very difficult. मुझे लगता है कि आप वो प्रॉब्लम लंबे समय तक जी नहीं पाओगे। मैंने जो 2 साल अपना रेस्टोरेंट चलाया, पहले 6 महीने में से 3 महीने हनीमून था, 3 महीने बिल्कुल खराब थे जब हम लड़ रहे थे, पर 6 महीने बाद जब सब सेटल हो गया, तब हमने चॉइस करी कि अब हमें रेस्टोरेंट को कंटिन्यू करें। और 2 साल बाद हमने अपना रेस्टोरेंट बेचा तब जब हम when we launched Possessed as a company and our conflict of interest नहीं चाहते थे ना, मैं एज ए रेस्टोरेंट ओनर अपने बाजू वाले रेस्टोरेंट ओनर को भी टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, तो समझिए कॉन्फ्लिक्ट था, राइट? तो हमने बोला कि ओके अभी हो गया है, हम अपना रेस्टोरेंट बेच देंगे, बिकॉज ये बिजनेस हम अगले 30 साल नहीं चलाना चाहते, इसको हम बढ़ाना नहीं चाहते, तो हम डिसर्विस क्यों करें इसके साथ, एंड वी विल ओनली सर्व टेक। बट हुआ ये कि even till today, Possessed is completing 12 years next month. Even till today, my empathy for restaurant owners is extremely high because मेरे लिए वो रोल स्विच करना बहुत आसान है। मैं 1 सेकंड में आपकी बात सुनते ही and go to that I can go to the restaurant floor, I can think exactly what must be the emotion each party is going through because I've been through those emotions. In fact, such experiences जैसे मतलब being an entrepreneur you had this service industry maybe when I was in college during my internship days, we used to work timelessly why? Because एक notion होता है कि 8 hours या 9 hours की शिफ्ट होती है, वो कभी 8-9 घंटे की होती ही नहीं है, और जो 8 या 9 घंटे की शिफ्ट होती है उसमें you don't learn, you perform the duties assigned to you. Correct. Maximum you learn is after those 8 or 9 hours, the amount you stay back. Such a beautiful point. वहाँ पे जब हम लोगों ने सीखा, मेरे साथ जो लोग थे उसमें से आज एक मास्टर ऑफ वाइन्स है, आज उसमें से एक अपना रेस्टोरेंट ओनर है, एक लीज पे होटल चला रहा है. It's not because they have power of money, it's because they were willing to go extra mile to learn. पर यार वो फिर आजकल तो वर्क लाइफ बैलेंस चल रहा है उसका, यार वो वर्क लाइफ बैलेंस ना एक टाइम के बाद आता है when you are accountable to somebody in your life, because ये तो चॉइस थी ना हमारे पास. बिकॉज मैं आपको ये बताता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में आई मेट अ लेजेंडरी रेस्टोरेंट ब्रांड ओनर, 72-year-old guy, billionaire, runs one of the most loved restaurant brand in Saudi Arabia. It's a brand called Albaik. दिल्ली में अल्बेक नहीं है, वो सब नाम है बस. सऊदी अरेबिया की ब्रांड है अल्बेक, फ्राइड चिकन ब्रांड है, KFC का कंपेटिटर है, एंड बीट्स KFC by 7 miles, not by a mile. रेवेन्यू फ्रॉम एन एवरेज KFC 7x है, बाजू में है KFC. So like most loved product. टैक्सी ड्राइवर भी लाइन में लगा हुआ है, Okay. एंड मासेराटी भी लाइन में लगी हुई है, सेम क्यू में. मेरे पास पिक्चर है जिसमें एक ही लाइन में टैक्सी ड्राइवर और मासेराटी दोनों लगी हुई है, 40 मिनट दोनों वेट कर रहे हैं बर्गर या वो चिकन नगेट्स खा के. तो मैं उनसे मिला अभी रिसेंटली, मेरा कस्टमर, मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, एंड द गाय इज पुलिंग 14 hour days at 72. He does not need money, right? When I was talking to him, he and me chatted for 1.5 hours, जिसमें हम दोनों को मालूम नहीं चला कि दिन रात कब निकल गया. And this guy had this childlike curiosity
ऑन की ऑपरेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं, ड्राइव थ्रू में क्या करें. He was also talking about ideas. He was also talking about his frustrations. कि यार ये लोग ऐसे करते रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए. It should be this way, that way. I enjoyed that so much. कौन सा work-life balance? Work-life balance is a good thing. Don't I think this guy has work-life balance? Of course he has work-life balance. The only difference is that the definition of work-life balance is not 3 hours every day. Definition of work-life balance is supposed to be that your work is so blended in your life that your family, your friends, your work, your professional colleagues, etc. It's all amalgamated, it's all blended. क्योंकि जिंदगी में साल भर में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब काम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ ऐसे महीने होते हैं जब काम लाइट हो गया. कभी कभी कुछ फैमिली में ऐसी अच्छी चीजें होती है जिस वजह से आपका फैमिली में ज्यादा टाइम चला जाता है. अगर आपके भाई या बहन की शादी है तो उस महीने आपको अगर कोई बोले कि अब बताओ वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, तब आप कह रहे हो ना लाइफ की तरफ थोड़ा पल रहा है, भारी है. तरफ काम है. And Correct. then when Which is fair. you have to go to work. And now that is exactly what my balance is. वर्क लाइफ बैलेंस इज सपोज्ड टू बी सुपर ब्लेंडेड. अगर वो ब्लेंड आप नहीं कर सकते हैं तो मुश्किल है. और आपने जो बोला ना, यू मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि वो जो 8-9 आवर्स की शिफ्ट है जो आपका ऑफिशियल टाइम है उसमें आप अपनी ड्यूटीज निभाते हो. सीखने का समय एक्चुअली उसके बाद का है. It's actually, I'm going to use that because it's a beautiful distinction. That's actually true. क्योंकि अगर आप अवेलेबल ही नहीं होगे तो when will learning hit you? आपको कब कोई बुलाएगा. वो एक मेरे को एग्जैक्ट लाइन भूल गई बट किसी सूफी संत की कुछ लाइन थी, पर उसका मतलब ये था कि नजरें इनायत तब होगी जब नजरों में रहोगे. बोला कृपा तो चाहिए पर अवेलेबल तो रहना पड़ेगा भाई, है ना. कौन से घंटे कृपा आएगी ये नहीं पता, पर आप अगर अवेलेबल नहीं है तो किस पे पड़ेगी नजर. So I think that's very important. Because I have been questioned during my time in healthcare sector, like आपको तो सब पता है, like who were we vaccinating, who were we treating, so entire ecosystem was there all thanks to Ritesh sir and Malik sir there. उनका ना एक सवाल था कि हम जब भी आते हैं आप मिलते हो, दिन में आता है, रात में आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, संडे आता है, एनी डे ऑफ द वीक, एनी टाइम ऑफ द डे. तो मेरे को एक बात याद आती थी कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपनी, तो वहां पर अगर मेरे को पता चलता था ना कि रात के 10 बजे मेरा गेस्ट चेक इन हुआ है और मैंने उसका चेक इन लिया है, एंड आफ्टर 2 days ही इज गोइंग टू चेक आउट एट 9 AM इन द मॉर्निंग, और मेरी जो शिफ्ट है वो 2 बजे दिन में स्टार्ट होगी. I was there at 8:45 to see them off. They leave at a very happy note. Wow. And I have testimonies of that being an intern in a hotel. Wow. I was being celebrated over Medallia, which is the feedback system of the hotel. Correct. With my name. और वो नाम आना इतने बड़े होटल के उसमें the amount of people they work there, उसमें एक हाईलाइट हो जाता था. That's a big achievement. फिर वो स्टाइपेंड पर तो ध्यान जाता ही नहीं. Which is such a beautiful thing because ये एफर्ट है और कौन लोग जाना एफर्ट है. वो एफर्ट ने मेरे को नहीं पता था कि ये मेरे को कम इतना रिवॉर्ड देगा. उस टाइम मैं भी सोचता था यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है. कोविड आ गया, अपॉर्चुनिटी मिली टू सर्व मैनकाइंड इन दिस मैनर, खड़े हैं. उस टाइम महसूस ही नहीं दिया. उस टाइम ये था यार ये प्रॉब्लम में है, वी आर आंसरेबल, वी आर अकाउंटेबल, वैक्सीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, इसकी डोज का टाइम उसकी. तो ये मेरे को ना प्रॉब्लम इसलिए नहीं, बिकॉज आई वाज ट्रेन्ड. जैसा आपने बताया, रनिंग अ रेस्टोरेंट फॉर 2 years ऑन द रोड साइड, जब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें कोई तक कॉक केम, उसके बाद कस्टमर कंप्लेनिंग, ठीक है ना. तो ये चीजें जब फिगर आउट होने लगती है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. दैट्स व्हेन पेशेंस कम्स इन. कंसिस्टेंट सभी और वो सभी कामों में इम्पोर्टेंट. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टुडे आई थिंक इट्स द सेम थिंग. our tech team, our technical support team, our teams in general, our account management team, if you think about it, technically they are always on their toes basis what is going to be the potential urgency that our client will have. हमारे clients का busy time क्या होता है?
वीकेंड्स, तो हमारी फेस्टिवल टाइम्स, तो हमारी टीम के लिए उनका हाईएस्ट रिस्पॉन्सिव टाइम कौन सा होना चाहिए? वीकेंड्स एंड फेस्टिवल्स. See, when people join us, we tell them that you're signing up for something which is of really really high importance. आप 364 दिन किसी रेस्टोरेंट का कॉल उठाने के लिए खड़े थे, इसको फर्क ना. वो एक दिन जिस दिन उसको जरूरत थी, अगर उस दिन आपने नहीं उठाया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, वो पूरा समय याद रखेगा आपको. That is always on in vain. करेक्ट. वो बोलेगा भाई साहब आप 364 दिन बैठे थे, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है. That one day count. दिवाली वाले दिन मेरे को असिस्टेंस नहीं मिली, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार अगर हमारा कस्टमर, सो हॉस्पिटैलिटी इज नॉट ऑन द, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हॉस्पिटैलिटी इज नॉट हैपनिंग ऑन द रेस्टोरेंट फ्लोर. हॉस्पिटैलिटी हैज टू हैपन हियर एज वेल. इफ इट इज नॉट हैपनिंग हियर, how will we help them help their customers? अभी की बात करें अगर, so young talent जो है which is in the hotel schools. I'm also from a hotel school, but that perspective of mine in technology and hospitality never came. What is Posist doing as of now to inculcate technology and seeding them right during the days of education, formal education in hotel corpus? No, great. I'm glad you asked that because हम लोग ट्रेडिशनली होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं आते. हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाज आल्सो that there is nothing called restaurant management degree. डिग्री का नाम भी होटल मैनेजमेंट, पर 70% plus jobs are in the restaurant space because F&B grows faster than hotels just by volume. As we started going into the restaurant space and teaching their staff our product, our entire platform is so huge. We have 80 different modules that encompass almost every possible operational aspect of a restaurant. Their front of the house, which is their point of sale system, their order taking system, their guest management system, to their kitchen automation, KDS, kitchen display systems, production planning system, to their back-end inventory control, their stock management, recipe, wastage control, their vendor management, their purchasing, their forecasting, their budget planning, to their supply chain, to their warehouses, to their central kitchens, commissary units. It's a full package. And then it comes to CRM, their customer data, their in India Zomato Swiggy integrations, their order management, their throughput. It is a vast platform. And as we started teaching, training staff at our customer restaurants, we consistently realized that they have not only not been trained in our product, obviously they have not been trained in any software. And then we actually started talking to a lot of hotel management, hospitality colleges, and we started asking कि आप लोग tech के लिए क्या करते हैं? And all we realized was that almost all of them have assumed कि जब प्लेसमेंट होगी वो अपने आप सिखा, वो जहाँ जाएंगे वो सिखा, वो लोग वहाँ सिखाएंगे. And we would clearly, I also hear that because technology space में इतनी fragmented है कि कोई कुछ अलग अलग यूज कर रहे हैं. कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स थे, Oracle ने, जैसे फॉर एग्जांपल होटल साइड पे ओपरा ने बहुत अच्छा काम किया, तो Micros, that's Opera. So Micros Opera is something that was kind of standard. So last year we launched something called Posist Academy. That's interesting. It is, yeah. So Posist Academy is not open for all right now. Okay. Right now it is only open to people who work at our customers. So if you're an employee of a brand that uses Posist's platform, Academy is available to you, and you can learn across 18 modules, anything to the depth, have an assessment, get a certification. But now, we are already 1 year, 5 months, almost 1.5 years old Academy. 2,000 learners have graduated from it already internally. Now we are bringing it out to the colleges. So this year, 2024, January onwards, we are now setting up labs in different hospitality colleges across the nation in partnership with those colleges. And I will not name them right now because
deals are still going on. But we are actually willing to add a module of cloud technology in restaurant management, in F&B management, because this will equip most of these people in a much better way. For us as a company, I think the fondest hope is कि अगर एक पूरी जनरेशन प्रो टेक्नोलॉजी होने के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एंटर करती है, तो चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रमोट करे चाहे हमारे कंपेटिटर का, फैक्ट ये है कि कम से कम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो प्रमोट नहीं हो, राइट? पूरी मार्केट अगर टेक्नोलॉजी की बात करने लगेगी तो बिजनेस सभी के लिए बढ़ जाएगा। इससे नुकसान किसी का नहीं होगा और फायदा सबका होगा। तो वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट। इनफैक्ट I would ideally hope that eventually our competitors also start investing in some part of their revenue in education initiatives, which may not bring any direct revenue for the time being, but if your vision is 10 years out, it is hopefully going to be a very, very big and good investment. I must congratulate you for that, because I have spent that time without technology, and people are doing such things now. And hospitality is synonymous to hope. I always mention that, and the hope of technology coming from you into this industry is something that people would vouch for. Now, please tell me, ki India mein, where there is, I saw one of your narratives which told me that Papa's replacement is boss. So India mein, where there is a culture of prevailing ancestrals or parents hote, how familiar and how willingly are they to adapt technology in their family business of restaurants? अब नहीं है यार। अब I think वो जो to clarify that statement, तो वो 2015 to 2019 का टाइम था। 2015 से 2019 के बीच में हमारा मैक्सिमम इंडियन बिजनेस वाज अबाउट कि जहाँ पे कोई यंगस्टर इज एंटरिंग अ फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे दादाजी या पापा कभी से चला रहे थे और वो आते ही पापा को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना चाहता है, वो पॉज लगाना चाहता है, वो चाहता है कि पापा गले पे बैठना बंद करें। आई थिंक दैट हैज वी आर ऑलरेडी पास दैट। आई थिंक इफ यू विल सी इन लास्ट 7-8 years, average age of a restaurateur has dropped to under 30. So average age of a restaurateur has dropped to under 30. So I think आज की डेट में दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। इंडिया में फॉर श्योर एवरीबडी इज प्रो टेक। आई डोंट सी रेस्टोरेंट्स नॉट यूजिंग टेक। वेदर दे आर यूजिंग गुड टेक, excellent tech or poor tech is debatable, but they are pro tech. I think it is also fueled by the fact that 70% revenue Zomato Swiggy से आ रहा है। ऑर्डर आपको इमीडिएटली चाहिए। डिलीवरी का बिजनेस गेम ही 25 से 30 मिनट का है। अगर ऑर्डर डिले हो गया या ठीक से नहीं आया तो आपको नुकसान होगा, आपका रिव्यू खराब होगा, पैसे कटेंगे। Very fragile business. Very, very low margin business, very, very high efficiency requirement. I think technology has just penetrated inevitably in the restaurant space now. I think what we saw 2012 से लेकर 2000 कम से कम 17 तक तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। 2000 से 12 से 17 की जिंदगी हमारे लिए बहुत डिफरेंट थी। हम लिटरली पहाड़ उठा रहे थे, हम ही सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हम ही समझा रहे थे, हम ही उसकी यूटिलिटी समझा रहे थे, हम ही कन्विंस कर रहे थे, हम ही बेच रहे थे, हम ही उसको एक्सपीरियंस करा रहे थे कि टेक से क्या हो सकता है। टुडे लाइफ इज मच ईजियर from that perspective because I think need in the market and a lot of competition solved it. मेरे को हमेशा लगता है कि competition अच्छी चीज होती है। अगर आपकी मार्केट में आप अकेले हो तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। अगर आपके बहुत सारे competitor हैं, life is very good because you'll be able to Keeps on the motivation to constantly improve, constantly research. Market also teaches you, right? आपका कोई खराब competitor अगर होता है तो उस वजह से आपको बिजनेस आता है, और आपका कोई अच्छा competitor होता है जो आपको बीट कर रहा है तो आपको सीखे होगा। Makes you better work. It has been a really very interesting conversation. I think that a lot of it was being covered from your end. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं that would require a lot of time. So let's have part 2 some in the new years, of course, the next year. So thank you very much for doing this. I hope people of my age and budding hoteliers would vouch for this conversation because tech was involved, making the lives easy. And thank you very much for your time. Thank you, Raju. Thank you.